আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, স্বাগত জানাচ্ছি সেকেন্ড সুইচ সাব্বিরে। আজকে যে নিউজটি শেয়ার করতে যাচ্ছি তা একজন বাংলাদেশি হিসাবে অত্যন্ত গর্বের, কেননা বাংলাদেশ ইতিহাসে প্রথমবারের মতো লোন দিতে যাচ্ছে। তাও ছোট্ট কোনো লোন নয়, $200 মিলিয়ন বড় একটি লোন। সার্কভুক্ত দেশের মধ্যে একমাত্র ভারত বাদে বাংলাদেশই প্রথম অন্য কোনো দেশকে লোন দিতে যাচ্ছে। অবাক করার মতো কথা হচ্ছে যে বিশ্ব এর আগে কখনো বাংলাদেশকে প্রোভাইডার অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স হিসাবে দেখেনি। কেননা যে দেশে ছোট্ট ছোট্ট এইড আসতো অন্য দেশ থেকে, যে দেশ অন্য দেশ থেকে লোন নিয়ে এতদিন চলছিল, সেই দেশটাই এখন অন্য দেশকে লোন দিচ্ছে। বিষয়টি অবাক করার মতো বিশ্ববাসীর কাছে। বিগত কয়েক বছর লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে বাংলাদেশ তার ইকোনমিকে অনেক দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়েছে। সারপ্রাইজিংলি 2020 সালে বাংলাদেশের ইকোনমিক গ্রোথ ছিল +5.2%, যেখানে আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতেরও ইকোনমিক গ্রোথ ছিল মাইনাসের কোঠায়। আইএমএফের একটা তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে 2021 সালে তার ইকোনমিক গ্রোথকে +7%কেও ছাড়িয়ে নিতে সক্ষম হবে। আপনারা জানলে খুশি হবেন যে ইতিমধ্যে ভারতকেও পেছনে ফেলে এসেছে বাংলাদেশ পার ক্যাপিটা টার্মে, যেটি আমরা মাথাপিছু আয় হিসাবে জানি। তার একটাই কারণ হচ্ছে বাংলাদেশ তার লক্ষ লক্ষ মানুষকে দরিদ্র সীমার উপরে নিয়ে এসেছে। এবার আসি ফরেক্স রিজার্ভে। প্রত্যেক দেশেরই ফরেক্স রিজার্ভে ইউএসডি ডলারে একটা রিজার্ভ থাকে, যেটি বাংলাদেশের মে মাসের তথ্য অনুযায়ী হচ্ছে $45 বিলিয়ন। বাংলাদেশের ছোট্ট একটা দেশের ইকোনমি অনুযায়ী $45 বিলিয়ন ইটস হিউজ থিং। প্যান্ডেমিক চলাকালীন সময়ে অন্যান্য দেশগুলোতে ফরেন রেমিটেন্স আসার পরিমাণ কমে গেলেও শুধুমাত্র বাংলাদেশে এসেছে $21 বিলিয়ন, যেটি আমাদের ইকোনমিকে তড়িৎ গতিতে উপরের দিকে নিতে সাহায্য করেছে। এই ছোট্ট স্ট্যাটিস্টিকগুলোই বলে দেয় যে বাংলাদেশ তার ইকোনমিকে কীভাবে র্যাপিডলি গ্রো করে নিচ্ছে। তাহলে আমরা বলতেই পারি যে এটুকুতেই শেষ নয়, দ্য বেস্ট ইজ ইয়েট টু কাম। স্বাধীনতার 50 বছর পরে এসে বাংলাদেশের ইকোনমিক গ্রোথের স্ট্যাটিস্টিকটা একজন বাংলাদেশি হিসেবে আমাদেরকে অনেক গর্বিত করে। চলুন দেখে আসি এবার অন্যান্য দেশের লোকজন আমাদের এই ইকোনমিক গ্রোথকে কিভাবে দেখছে। कि बांग्लादेश हैज़ गिवन ए लोन, फॉरेन करेंसी लोन टू श्रीलंका इन ए करेंसी स्वैप डील $200 मिलियन। आप सोच सकते हो कि बांग्लादेश हमेशा दूसरे कंट्री से, ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेता रहा है। अब बांग्लादेश बड़ा हो गया है, बांग्लादेश इज़ बिकमिंग ए बिग कंट्री, और बांग्लादेश का फॉरेन एक्सचेंज का जो भंडार है वो भी $45 बिलियन क्रॉस कर गया है। और पहली बार इन द हिस्ट्री, इन द फर्स्ट टाइम इन 50 years, बांग्लादेश इज़ गिविंग ए फॉरेन करेंसी लोन फॉर 1 year टू श्रीलंका इन ए करेंसी स्वैप डील। बांग्लादेश बैंक ने ये लोन दिया है उनको, और ये बातचीत तब हुई थी जब राजपक्षे साहब, जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं, वो बांग्लादेश की 50 years की जब एनिवर्सरी मनाई जा रही थी वहाँ पर आए थे, और उन्होंने तब बातचीत हुई थी, क्योंकि इस टाइम श्रीलंका का जो फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है सिर्फ $4 बिलियन, ओनली $4 बिलियन। उनकी हालत बहुत ख़राब है। और कमाल की बात ये कि ये जो लोन दिया गया है 1 साल के लिए, ये 1 to 2%, 1 से 2% के बीच में दिया गया सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर। तो ये अपने आप में मुझे भी अच्छा लगा देख के कि आज बांग्लादेश बड़ा बन गया है। ऐसा नहीं कि 50 साल बाद बड़ा बना है, बांग्लादेश आज बड़ा बन गया है, क्योंकि आज उसने वो कर दिखाया जो बहुत रेयरली कोई कंट्री करता है। आईएमएफ की प्रोजेक्शंस के बारे में पहले थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखती हैं। आईएमएफ ने कहा है कि साल के एंड तक, 2020 के एंड तक, बांग्लादेश का पर कैपिटा जीडीपी इंडिया से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आईएमएफ ने यह भी प्रोजेक्ट किया है कि 2021 में इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी फिर से आगे निकल जाएगा बांग्लादेश के पर कैपिटा जीडीपी से, $2030 कंपेयर टू $1989। जो लोग सरकार को सपोर्ट करते हैं वो इस फैक्ट पर बहुत कॉन्सेंट्रेट करके आपको कहेंगे ये देखो, ये तो सिर्फ शॉर्ट टर्म चीज है, बाद में हम वापस आगे निकल जाएंगे। लेकिन आईएमएफ ने दोस्तों बाद की भी प्रोजेक्शन करी है। इन्होंने कहा है कि इंडिया की ग्रोथ ज्यादा सस्टेन्ड नहीं रहेगी 2021 के बाद, क्योंकि 2024 में बांग्लादेश का पर कैपिटा जीडीपी फिर से इंडिया से आगे निकल जाएगा, और वो फिर उसके बाद आगे ही निकला रहेगा। अब कुछ लोग यहां पर यह भी कहेंगे कि सरकार पे ब्लेम डालना सही नहीं होगा, ये कोरोना वायरस की वजह से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है। इंडिया एक बहुत ही पॉपुलेटेड कंट्री है, कोरोना वायरस ज्यादा फैला इसलिए इंडिया इतना ज्यादा इफेक्ट हुआ है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों,
बांग्लादेश इंडिया से कोई कम पॉपुलेटेड कंट्री नहीं है। इनफैक्ट बांग्लादेश दुनिया की मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, इंडिया से 3 टाइम्स ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड। तो अगर कोरोना वायरस फैला था तो बांग्लादेश में और भी तेजी से फैलना चाहिए था, उन्हें और भी ज्यादा बुरा असर करना चाहिए था। लेकिन इंडिया में कोरोना वायरस की वजह से यहां पर -10% जीडीपी ग्रोथ रेट की प्रोजेक्शन की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में +4% की प्रोजेक्शन करी जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया को फेस करना पड़ा है, बांग्लादेश को भी फेस करना पड़ा है, लेकिन बांग्लादेश इंडिया से कहीं बेटर सिचुएशन में। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको बता दूं, आज से 5 साल पहले इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी 40% ज्यादा था बांग्लादेश से। 40%। सोचकर देखो पिछले 5 सालों में कितनी कुछ चीजें गलत हुई इंडिया के लिए और कितना कुछ यहां पर अच्छा हुआ बांग्लादेश के लिए कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो पाई। पूरा अदला बदली हो गया यहां पर 5 साल के अंदर। छोटा सा तबका अमीर हो गया, बाकी लोगों के पास हमारे से सारे मुल्क आगे, बांग्लादेश हमारे से आगे निकल गया। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में जमीन आसमान का फर्क होता था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से ज्यादा खुशहाल हो जाएगा। और आज देख लें बांग्लादेश, जिसको लोगों ने यहां जब अलहदा हुआ तो उन्होंने कहा जी बहुत बोझ पड़ा हुआ था पाकिस्तान पे, ईस्ट पाकिस्तान का, आज वो पाकिस्तान से आगे निकल गया। तो जब एक मुल्क के अंदर बड़े बड़े डाकू मुल्क की सरबराही करते हैं, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, वो खुशहाल नहीं हो सकता। एक आप फैक्ट्री के ऊपर एक डाकू को बैठा दे, आपकी फैक्ट्री बैठ जाएगी, वो उसका दिवालिया निकल जाएगा। तो मैं सिर्फ आपको यह कह रहा हूं कि हम एक मुश्किल हालात से निकल रहे हैं। आप ये समझ जाएं कि मुल्क का तारीखी कर्जे चढ़े हुए हैं आज पाकिस्तान के ऊपर।